वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम के प्रैक्टिकल, जहां पे हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन, उसमें पोल, जीरो एंड गेन विद द हेल्प ऑफ साइन. So outline of this particular presentation is first introduction, then we discuss about transfer function, then what is pole, zero, gain, and S-plane that is discussed, and finally example to be solved using style. So transfer function, convenient representation of a linear dynamic model, that is transfer function, relate one input and one output. Like this system is given. Here u of t is the input, y of t is the output, and Laplace u of s and y of s. So the following terminology is used, like u is the input, it is a forcing function, cos, and y is output, response, and effect. Then this is a simple diagram of transfer function that discussed with the help of g of s and feedback h of s, where g of s is a gain, h of s is a feedback system, r of s is input, and c of s is a output system. Then the transfer function for the particular system is T of s is equal to g of s divided by 1 plus g of s h of s. The transfer function, that is about pole, zero, and gain. The transfer function, a transfer function is defined as the ratio of Laplace transform of the output to the input with all initial condition equal to 0. And transfer function are defined only for linear time invariant system. Consideration: transfer function can usually be expressed as a ratio of two polynomials in the complex variable f. This is a factorization. A transfer function can be factored into the following term. So this is the representation in kind of pole, zero, and gain. So here the roots of the numerator polynomial are called 0. Okay. Then the roots of the denominator polynomial are called poles, and the k known as the gain of the transfer function. मतलब जब भी आप न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करेंगे और आपको जो भी रूट्स मिल रहे हैं तो वो से कहेंगे जीरोस. जब आप डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करेंगे और आप जो भी आपको रूट्स मिल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पोल्स, और ये जो k है ये बता रहा है गेन. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पोल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन. देन लेट्स डिस्कस पोल, जीरो एंड द S-plane for with the help of example. So example is like we are given following transfer function, show the poles and zero in the S-plane. So transfer function is that g of s equal to s plus 8 in second bracket s plus 14 in denominator s into s plus 4 into s plus 10. So this is the kind of representation with zeros poles. So here three poles are there at s equal to 0, s equal to minus 4, s equal to minus 10, and here zeros at s equal to minus 8, s equal to minus 14. So how this poles and zero kind of transfer function represent with the help of S-plane? So that is with the help of this imaginary axis and sigma axis, like g omega axis, sigma axis and S-plane. So origin पोल बता रहा है, -4 पे पोल है, एक -10 पे पोल है, जो यहाँ पे इक्वेशन में हमें साफ दिख रहा है, और जीरो कहाँ पे है, -8 पे और -14 पे. So that is the pole zero in the S-plane. So now task is you have to solve the example with the help of Scilab. So first example that generate transfer function of the discuss example, मतलब आपको जो ये transfer function दिया गया आपको वही transfer function Scilab की मदद से solve करना है. That is the first task. I think that is the easy one. Then second is find a transfer function of the system whose zeros and poles are at -1, -2 and -3, -4 respectively. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है जिसके जीरो कहाँ पे, -1 और -2 पे है, और पोल है -3 और -4 पे. थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, हमें जीरो और पोल गेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम whose zeros and poles are given, that at -1, -5 zero is given, 0, -3, -4, -7 pole are given and gain with 5. So यहाँ पे आपको कौन सा रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है, जीरो पोल गेन वाला रिप्रेजेंटेशन आपको फाइंड करना है. और फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड a transfer function of the system whose zeros and poles are at -1, -4 and -2, -3 respectively with a gain 50. तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है. ओके, फाइनल s² 22s². तो ये ट्रांसफर फंक्शन वाला फॉर्म हुआ. ये जो फॉर्म है वो जीरो पोल वाला फॉर्मेशन है, तो ये आपको फाइंड करना है लास्ट वाला एग्जांपल में. तो इस तरह से आपको 4 एग्जांपल अभी आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ Scilab. लेट्स ट्राई टू
solve this particular example with the help of Sile. तो पहले हम फाइंड करते हैं जनरेट, पहला हमारा एग्जांपल था वो था जनरेट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो वो जो हमने डिस्कस एग्जांपल किया था वही एग्जांपल हमें साइलैब से सॉल्व करना है। तो उसमें कुछ इस तरह से था, एस स्क्वायर प्लस 22s प्लस 112 डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस 40। ओके, तो ये पहला हमारा एग्जांपल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्लियर कर देते हैं। वैसे कुछ है तो नहीं, क्लियर किस लिए, तो क्लियर है फॉर क्लियरिंग वेरिएबल ब्राउजर, और बाद में हम CLS भी कर देते हैं। अगर कंसोल में कुछ लिखा हो तो वो भी निकल जाएगा, तो क्लियरिंग कंसोल विंडो। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एस, क्योंकि यहाँ पे हम जो चाहिए वो पॉलिनोमियल एस में चाहिए, तो एस पहले डिफाइन कर देते हैं एस। तो ये हो गया डिफाइनिंग पॉलिनोमियल फॉर एस पॉलिनोमियल। अब बाद में हम कर लेते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या हमें चाहिए, एस स्क्वायर। तो ये जो कोफिशिएंट है उसी हिसाब से हम मैट्रिक्स अरेंज करेंगे। तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है पोली करके, जहाँ पे आप मैट्रिक्स के हिसाब से लेते हो। तो पहला एस स्क्वायर है, पहला ये एस स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट क्या बनता है 1 इंटू एस स्क्वायर। तो ये हो गया 1 यहाँ पे पहले आएगा। बाद में दूसरा कोफिशिएंट क्या है एस के लिए 22 है, तो ये बनेगा यहाँ पे 22। बाद में जो थर्ड है वो क्या है एस टेस्ट टू 0, तो उस पर टर्म क्या है 112, तो यहाँ पे बनेगा 112। ओके, तो ये पहला बन गया। तो यहाँ पे हमने यूज किया है पॉलिनोमियल एस का, और बाद में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोफिशिएंट। दोनों तरह से होता है, रूट से भी होता है, कोफिशिएंट से भी होता है। तो कोफिशिएंट का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया चल मैट्रिक्स में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, और 122 112 मैट्रिक्स जनरेट द फर्स्ट टर्म, दिस टर्म एस स्क्वायर, ओके, एस स्क्वायर प्लस 22s 12s। फिर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, देन एस represent polynomial in S, और कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट coefficient in polynomial S of polynomial S। ओके, तो उसी हिसाब से हम डिनोमिनेटर भी डिफाइन करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें एस क्यूब 14s स्क्वायर। बाद में देखो यहाँ पे एस की जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, और बाद में एस टू 0 का कोएफिशिएंट है 40। तो इसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो सिमिलर वे वी कैन आल्सो यूज अ डिनोमिनेटर काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर, तो ये पोली यहाँ पे हमने चाहिए कोएफिशिएंट में 1, बाद में क्या है 14, तो ये हो गया 14, बाद में 0 है तो 0, और बाद में है 40, तो ये होगा 14। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है 1 14 0 और 40। ओके, यहाँ पे 1 4 है। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है दिस इक्वेशन एस क्यूब 14s स्क्वायर 40 क्यूब। बाकी तो सेम ही, एस रिप्रेजेंट polynomial in S and coefficient represent the different coefficient in polynomial S।
तो ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी करना है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं वेरिएबल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू सिस्टम in that c is used and 10 in numerator and denominator। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मदद से हम ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं। तो c किसके लिए है? कंटिन्यूस के लिए है। डिस्क्रिप्टिवली डी होता है, तो c है वो कंटिन्यूस के लिए है, फॉर कंटिन्यूस। ओके, तो ये हमारा था पहला प्रोग्राम। रन दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, पहले सेव करना है, बाद में एग्जीक्यूट। तो क्लिक दिस। अब देखते हैं साइलैब में चलिए। तो यहाँ पे क्या तो यहाँ पे मैंने क्लियर CLC बाद में ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया है। अब मैं इसे ट्रांसफर फंक्शन को अगर मुझे एक प्रिंट करवाना है, सो ट्रांसफर फंक्शन। ओके, so transfer function is like this: 1 2s plus 1 2s square 1 plus 14s plus 14s cube। तो जिस तरह से हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए था उस तरह से हमें ट्रांसफर फंक्शन साइलैब की मदद से यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ साइलैब। तो चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। क्लियर find the transfer function system whose zeros and poles are at -1 and 2 and -3 and 4। तो यहाँ पे जीरो कहाँ पे है? -1 और -2 पे है, और पोल है -3 और -4 पे। तो चलो इसके लिए एग्जांपल करते हैं साइलैब में। सेकंड इज फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose zeros and poles are at -1 -2 and -3 -4 respectively। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें चाहिए। s+1 then s+2 divided by s+3 and s+4। तो इस तरह से हमें सिस्टम चाहिए। तो चलो पहले कर देते हैं क्लियर, then CLC, then पॉलिनोमियल डिफाइन करते थे s परसेंटेज s। तो ये हो गया for s पॉलिनोमियल, then न्यूमरेटर, तो ये हो गया पोली। जैसे पहले क्या था वैसे ही मैट्रिक्स में यहाँ पे चाहिए मुझे -1 -2। अब पहले मैंने क्या किया था, कोएफिशिएंट लिया था, अब मैं यहाँ पे लूँगा रूट्स। तो ये होगा पहला प्रोग्राम, पहला पार्ट। यहाँ पर मैंने जीरोस ले लिए। तो जो -1 -2 है, -1 -2 मैट्रिक्स जनरेट zeros of the transfer function then same as represent polynomial in S, then roots represent roots of polynomial S। ठीक है, तो उसी तरह से ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। उसी तरह से हम डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, -3 -4। तो डिनोमिनेटर में चाहिए हमें -3 -4। तो ये होगा -3 -4 एस रूट। ये बन गया मैट्रिक्स -3 -4 के लिए।
ओके। और चलो बाद में सेम ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह से बना, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू सिस्टम C for continuous, then numerator and denominator। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर लिया। यहाँ पे C किस लिए है, कंटिन्यूस के लिए। हियर C फॉर कंटिन्यूस। इसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो पहले मैं इसे रन कर देता हूँ, सेव। तो यहाँ पे सेव हो गया, बाद में यहाँ पे रन करेंगे। तो डिस्प्ले पे यहाँ पे मैं देखता हूँ ट्रांसफर फंक्शन। तो देख, तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन s+1 s+2 डिवाइड बाई s+3 s4 के लिए कुछ इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिलेगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको यही ट्रांसफर फंक्शन दैट इज s² + 3s+2 डिवाइड बाई s² + 7s+12। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल। अब सेकेंड पार्ट। अब थर्ड क्या था कि हमें जीरो पोल गेन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कि फाइंड जीरो पोल गेन representation of the system whose zero pole are given at -1, -5 and 0, -3, -4, -7 respectively with gain 5। ठीक है, तो चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइलेंस। तो अब ये हो गया थर्ड। तो थर्ड क्या है, फाइंड जीरो पोल गेन representation of the system whose zeros and pole are at -1, -5 and 0, -3, -4 and -7 respectively with gain 5। ओके, तो ये हमारा टास्क है। तो इसका कुछ इस तरह से हमें चाहिए 5 into s+1 then s+5 और डिनोमिनेटर में है वो है s 0 पे भी है तो s into s+3 another bracket s+4 and another bracket s+7। तो ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे वेरिएबल ब्राउज़र को क्लियर करना है, तो बाद में CLC करता हूँ, मुझे कंसोल को क्लियर करना है। तो यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ 0। पहले 0 में ले लेता हूँ। तो 0 हमारा इसमें है, यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। तो ये हम हो गया जीरोस, 0 ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले कलर ब्लू था क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड यहाँ पे साइड में अवेलेबल है। तो आप वही वेरिएबल लगे तो आपको कुछ एरर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 0, 1। ये वेरिएबल इनबिल्ट वेरिएबल इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है, तो उससे यहाँ पे -1, -5 और बाद में ये हो गया 0 का रिप्रेजेंट। तो ये क्या था, zeros of the given सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। उसी तरह से पोल ले लेता हूँ, पोल्स 1 दैट इज इक्वल टू एक 0 पे है, एक -3 पे है, एक -4 पे है, एक -7 पे। ठीक है, तो ये हो गया पोल्स ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेमीकोलन में नहीं लगा रहा हूँ तो ये इसका एग्जीक्यूशन होगा। अगर मैं सेमीकोलन यहाँ पे लगा देता हूँ तो इसका एग्जीक्यूशन में कंसोल पे नहीं होगा, मिलेगा, मतलब रन तो होगा लेकिन कंसोल पे जीरो पोल्स इस तरह से रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो मुझे चाहिए भी नहीं वैसे, तो मुझे तो सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन चाहिए जीरो पर गई के रिप्रेजेंटेशन में। बाद में ले रहा हूं मैं गेन, दैट इज के इक्वल टू 5। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ द गिवन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, जीरो पोल गेन का मुझे चाहिए रिप्रेजेंटेशन, तो इसके लिए जीरो पोल गेन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ ZPK। और जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिया है वही यहाँ पे यूज होगा। तो पहले लेता हूँ जीरोस, बाद में लिया मैंने पोल्स, और बाद में ले रहा हूँ के गेन, और बाद में कंटिन्यूस स्थिति में रहेगा यहाँ पे C। तो C4 कंटिन्यूस, C4 कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जीरो पोल गेन का सिस्टम फंक्शन। तो चलो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, और ये सेव कर दिया, यहाँ पे रन कर दिया। तो अब साइलेज में चेक करते हैं कंसोल पे क्या रिजल्ट आया। तो साइलेज में रन करता हूँ जीरो पोलर गेन, तो देखिए मुझे यही मिल गया जो मुझे चाहिए था, 5 इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 5 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 7। ओके, तो ये तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बाकी रहा लास्ट वन। तो लास्ट वन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या था डेफिनेशन। तो फोर्थ वन का डेफिनेशन इस तरह से, फाइंड a transfer function of the system whose zeros and poles are at -1, -4 and -3, -2, 3 respectively with gain 50। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना था हमें, पोल, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। पहला केस क्या था, उसमें फाइंड करना था फाइंड जीरो पोल गेन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, तो चलो ये एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड। ये हो गया फोर्थ के लिए मुझे चाहिए फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose zeros and poles are at -1, -4 and -2, -3 respectively with gain 50। ओके, तो ये हो गया। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर एंड। ओके, तो ये मुझे चाहिए फाइंड ट्रांसफर फंक्शन of the system whose zeros and poles are -1, -7 and -2, -3 respectively with gain 50। तो पहले हम ले लेते हैं क्लियर फॉर क्लियरिंग वेरिएबल ब्राउजर, बाद में CLC फॉर क्लियरिंग कंसोल विंडो। अब करता हूँ मैं 0, 1 दैट इज इक्वल टू कहाँ पे, -1 एंड -4। ठीक है, यहाँ पे -7 पे, ओके, -1 एंड -7 पे, और उसी हिसाब से पोल से। तो ये पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, तो zeros ऑफ द गिवन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। उसी हिसाब से हम पोल देख लेते हैं। तो पोल कहाँ पे है, कर लिया, इसका मैंने डिफाइन कर दिया पोल्स कहाँ पे, -2, -3। तो ये होगा -2, -3। तो ये रिप्रेजेंट करता है पोल्स ऑफ द गिवन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब हमें फाइंड कर, अभी गेन भी लेना है। तो गेन कहाँ कितना है, k इक्वल टू
50, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, गेन। तो गेन ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ओके, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ जिससे उसका एग्जीक्यूशन कॉन्सोल में नहीं दिखेगा, रन तो होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए पहले जीरो पोल गेन में हम उसको लिख देते हैं। तो जीरो पोल गेन के फॉर्म में लिखे तो उसका होगा ZPK, और पहले होगा जीरोस, बाद में रहेगा पोल, और बाद में रहेगा गेन, और C for कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ जीरो पोल गेन सिस्टम representation and with C continuous, C for continuous। अब मुझे यहाँ पे तो ट्रांसफर फंक्शन भी चाहिए, तो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा कुछ इस हिसाब से, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू, तो जीरो पोल गेन की मदद से ही हम ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो Z टू ट्रांसफर फंक्शन, तो ये हो जाएगा, मुझे जीरो पोल गेन का ही मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो जीरो पोल गेन के लिए मुझे मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन, तो ये हो गया जीरो पोल गेन टू ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये पहले मैंने सेव कर देता हूँ, पहले हम देखेंगे जीरो पोल गेन का इस पे। तो पहले मैं इसे रन, सेव के बाद रन करता हूँ, एग्जीक्यूट। तो अब देखते हैं हम इस कंसोल में। चलो, तो क्या हुआ, जीरो पोल गेन। ओके, तो ये हो गया हमारा जीरो पोल गेन, 50 S+1 S+7 डिवाइड बाय S+2 S+3। यहाँ पे 50 गेन है, -1 -7 जीरोज है, और -2 -3 हो गए पोल। मुझे उसी का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका मुझे ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस हिसाब से मिल रहा है, 50S² प्लस 400S प्लस 350 डिवाइड बाय S² प्लस 5S प्लस 6। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट। तो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल, जनरेट ट्रांसफर फंक्शन, डिस्कस एग्जाम्पल, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम whose zeros and poles are at this particular -1 -2 -3 -4, then zero pole gain representation, and find transfer function. So thank you.